Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. My dear student, this is Yasin Ahmed Minai again, and in this part 3, I want to proceed from the same point we have discontinued in our from our last lecture. Okay, so drawing a random sample, an example which was followed, and I gave you instruction to please draw a sample by yourself from this particular population, and I did this for giving you as an example. Okay, तो बेसिकली जितने भी स्टूडेंट्स थे उन्होंने ये सैंपल ड्रॉ किया है और बाय ड्राइंग दिस सैंपल बाय ईच एंड एवरी वन ऑफ यू आई आस्क देम टू प्रोवाइड मी द वैल्यू ऑफ सैंपल मीन एक्स बार। तो जितने भी स्टूडेंट्स ने मुझे रिप्लाई किया तो उनके सैंपल मीन्स की वैल्यूज़ को मैंने रिकॉर्ड कर लिया एंड लेट मी शो यू दोज वैल्यूज़ आई हैव गैदर्ड इन MS Excel। ओके, now here come these values. So how many students responded to me? We can observe the serial number and this yes, it is okay. Here it is. Total 56 students have given their results to me and I have gathered the record of 56 mean values drawn from the same population I showed you few moments ago. So now we have to start working on this data, and this is the data of means. Okay, so this is the data of means. This is not the data of single values. This is not the data of x bar x, but this is the data of x bar. So what we are going to do with this data? So before start working on this data, let me start another topic which is associated with the same work which I am about to give you. Okay, so where is that new topic? Here it is, sampling and sample estimates. So I told you the definition of sampling. Can you please repeat it? Recall it. Sampling is the procedure. Yes, sampling is the procedure of getting a sample from a population. And this was the illustration I told you in my last lecture. So in this population, basically we have drawn a random sample here, and this arrow is representing the procedure, which is nothing but the sampling. And whenever we got the sample, we got the sample results. Okay, the sample results are known as estimates or statistic without s. Okay, if you use the word statistics with s, so it is the name of a subject. But if we use the parenthesis or even without using x, statistic is nothing but an estimate. So what is an estimate? Estimate are the sample results. Whatever result we are getting from the sample, we named it generally estimate. And the same result obtained from the population are called parameters. So for an example, we can say x bar is the sample mean and sample estimate. Okay, and mu is the population mean, which is called the parameter. So purpose of showing this slide is basically to make you something remember कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में या लास्ट लेक्चर में क्या किया था। वी हैव परफॉर्म रिपीटेड सैम्पलिंग। अभी मैंने आपको रिजल्ट्स भी सारे दिखाए एक्सेल के ऊपर। तो रिपीटेड सैम्पलिंग में एक जनरल आउटलुक मैं आपको दे दूं। बेसिकली व्हाट वी हैव डन, तो हमने रिपीटेड सैंपल्स लिए एक ही पॉपुलेशन से, पॉपुलेशन सेम थी, एंड फ्रॉम द सिंगल पॉपुलेशन one student collects sample 1, second student collected sample 2 and sample 3, so on. So total number of students who collected the samples were labeled as M. Now I am using M, okay? It is not N, because small n for nothing. N is already allocated for the sample size, which was n is equals to 5 earlier. याद है आपको? तो यहाँ total number of samples m है, जो sample size था जिस पे सैंपल लिए गए वो सैंपल साइज n इज इक्वल्स टू 5 था। तो ये m की वैल्यू क्या है? इफ यू यूज योर सेंसरी मेमोरी आपको याद आ जाएगा कि m आपने देखा है कहीं पर। तो लेट मी टेल यू, m वॉज 56। अभी मैंने एक्सेल की फाइल में आपको दिखाया वो वैल्यू ऑफ m है। तो अपने पास लिख लें m इज इक्वल्स टू 56, n इज इक्वल्स टू 5, m इज इक्वल्स टू 56, n इज इक्वल्स टू 5। ओके, तो प्रोसीड टू दैट। हर सैंपल से
क्या कैलकुलेट किया हमने? यस, ईच एंड एवरी स्टूडेंट वर आस्क्ड टू कैलकुलेट सैंपल मीन x bar. From sample number 1 we got the value of first mean, sample number 2 gave us result of second mean and third mean, and so on. Similarly, total number of mean values became 56 or m. So all these values are not equal, right? अभी जो एक्सेल की फाइल मैंने दिखाई थी आपको, उसमें सारी वैल्यूज एक जैसी तो नहीं थी, डिफरेंस था उसमें। तो चूंकि वैल्यूज में डिफरेंस था तो मीन का डेटा, मीन का जो वेरिएबल है, एस्टिमेट है, वो इटसेल्फ बिकम अ डेटा। थोड़ा सा मैं गलत कह गया हूँ, जो मीन का एस्टिमेट था, the estimate became a data. So when any estimate became a data, whenever we perform repeated sampling and carrying out the same estimate each and every time. तो जब हम रीसैम्पलिंग करते हैं, रिपीटेड सैम्पलिंग करते हैं, तो हर बार सैम्पल एस्टिमेट जो आता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, और ये डिफरेंस जो है वो उस एस्टिमेट को एक वेरिएबल बनाता है। क्योंकि वेरिएबल और डेटा वो बन चुका है, लिहाजा इट डेफिनेटली हैविंग अ डिस्ट्रीब्यूशन। सिंस देयर इज अ डेटा, देयर शुड बी अ डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब हमें देखना यह है कि मीन्स का जो डेटा हमारे पास है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन है। तो आई एम गोइंग टू द स्लाइड ऑफ एमएस एक्सेल, सॉरी एमएस एक्सेल की शीट पे मैं अब जा रहा हूं दोबारा, ठीक है। ओके, हियर वी आर, दिस इज द डेटा ऑफ 56 वैल्यूज एंड आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि व्हाट इज स्मॉल m, it is 56. Okay, the value of small m is 56, value of small n is equals to 5। बार बार बताने का मकसद ये होता है कि आपको ये याद हो जाए कि इसमें आगे कहीं कंफ्यूजन ना हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू स्टैक द डेटा। तो मैं उस पूरे डेटा को स्टैक करना चाह रहा हूँ जो कि मैंने शीट नंबर 2 में किया हुआ है। और यहाँ पर देखें, ये पूरा डेटा यहाँ पर एक कॉलम में है, और यहाँ भी मैंने मेंशन किया हुआ है m is equals to 56, n is equals to 5, and we are interested to see the distribution of this means data. तो in order to find a distribution, वो introduction to statistics में आपने पढ़ा है, क्लास इंटरवल्स बनाएं, टेली मार्किंग का मेथड ऑप्ट करें, वो तो चीज़ें पुरानी होंगी सिंस वी आर हैविंग द टेक्नोलॉजी। तो इस वक्त मैं इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करूँगा। तो इन ऑर्डर टू मेक द हिस्टोग्राम ऑफ दिस डेटा, आई वॉन्ट टू हिट डेटा मेन्यू। डेटा मेन्यू में डेटा एनालिसिस है यहाँ पर, और डेटा एनालिसिस में यहाँ पर हिस्टोग्राम है। सिंस ये एक बार हो चुका है, लिहाजा वो पुराने जो इनपुट्स हैं वो इसमें मौजूद थे, वो मैंने इसको दोबारा से रीसेट कर दिया। तो इन ऑर्डर टू गिव द इनपुट रेंज, डेटा कहाँ पर है हमारा, यकीनन ये वाला डेटा है, तो हम इनपुट रेंज में ये पूरा डेटा प्रोवाइड कर देंगे। आप ये भी लिख सकते हैं B1 to B57, यूँ भी लिख सकते हैं। मैंने माउस से सिलेक्ट किया है तो ये इस तरह सिलेक्ट हुआ है। इफ़ यू वांट टू डू इट बाय योरसेल्फ तो आप इस तरह से कर सकते हैं कि आप यहाँ पर लिखें B1 colon B57, because the first value is label, that's why I have to check the label. If you want Excel to draw the histogram, you have to hit check this box, chart output. Now the histogram is about to display, or the distribution of this data means की distribution आपके सामने आने वाली है। After pressing OK, we can see the distribution and it is this. Now if we just adjust it at some extent, right, by double clicking on the bar values, because it is a histogram, it is not a bar diagram, so the connectivity should be there. So after getting the connectivity, now see the picture, it is approximately following a normal distribution. So one thing is clear कि मीन्स का डेटा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है। यहाँ पर ये बात तय हो गई, मीन्स का डेटा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है। और अब ये इस कॉन्सेप्ट में दोबारा से स्लाइड पे ले जाकर आपको क्लियर करता हूँ। ओके क्लास, हियर वी आर अगेन। तो सैंपल मीन, सैंपल एस्टिमेट एक डेटा बन गए, और यही सैंपल एस्टिमेट, इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन अभी आपने थोड़ी देर पहले देखी है, दिस इज सेड टू बी द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। The distribution of sample estimate is called a sampling distribution. For example, sampling distribution of mean, sampling distribution of variance, minimum, maximum, median, mode. Every sample estimate has a distribution. तो फिलहाल हमने जिस डिस्ट्रीब्यूशन पे काम किया, क्लास वर्क में यहाँ पर डिस्प्ले कर रहा हूँ बिकॉज इट इज मेंशन इन माय स्लाइड, जो कि हम अभी कर चुके हैं। डिटरमाइन द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन डेटा। What is the distribution of sample mean? We have observed so far
Yes, it is following somehow the normal distribution. Okay, so here we are going to start a theorem which is said to be the well known central limit theorem. अब यहां पर मैं बात मेंशन कर दूं कि पेरेंट पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन जो भी हो उससे की जाने वाली रिपीटेड सैम्पलिंग के नतीजे में हासिल होने वाले मीन्स का जो डेटा होगा दैट डेटा फॉलोज अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो सेंट्रल लिमिट थ्योरम के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए पहले मैं एक सिंपल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशन आपके सामने रख रहा हूं। इफ x इज अ रैंडम वेरिएबल which follows a normal distribution with mean mu and the standard deviation sigma, so we can show it like this. Symbolically it can be shown like this: x, this tilde sign Greek में है ना tilde, x follows the normal distribution n for normal with mean mu and standard deviation sigma. Similarly, the statement of central limit theorem says that distribution of sample mean x bar also following the normal distribution with the same mean mu, but the standard error of sigma over root n. Now instead of using standard deviation, they have used the term standard error. Why we haven't used the term of standard deviation? Because it is not the standard deviation, basically it seems like a function of standard deviation. तो सिर्फ सिग्मा जो है the term is allocated is for sigma, the standard deviation term जो है वो sigma के लिए allocated है. When it is sigma over root n तो हमें यकीनन दूसरा नाम यूज करना है. तो standard error is a general term used to show the standard deviation or the dispersion of any estimate. Okay, so x bar follows the normal distribution with mean mu and the standard error sigma over root n, where n is the sample size. Remember what was the sample size we have followed in our last lecture? Yes, that was n is equals to 5. Okay, so symbolically the central limit theorem statement is like this: x bar follows the normal distribution with mean mu, the same mean mu of the population, and the standard error sigma over root n. The question is, if both distributions are normal and both are having the same value of mean, then where is the difference? The difference is of spread. अब मैं यहाँ पर वर्ड स्प्रेड यूज करूंगा क्योंकि मैं स्टैंडर्ड डेविएशन या स्टैंडर्ड एरर यहाँ यूज नहीं कर सकता, मुझे जनरल टर्म यूज करनी है, वेरिएशन. तो वेरिएशन जो है दोनों का चेंज है, तो किसका वेरिएशन ज्यादा है किसका कम है, यहाँ से देख के बताएं. तो यकीनन n की कोई ना कोई वैल्यू होगी. इट इज मोर देन 1, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है. तो हर बार ये एक बड़ी वैल्यू होगी, उसका रूट निकालेंगे एंड व्हेन वी आर गोइंग टू डिवाइड इट विद सिग्मा तो इट विल गिव अस अ स्मॉलर वैल्यू. तो स्मॉलर स्प्रेड और ग्रेटर स्प्रेड, इन दोनों के दरमियान जो फर्क होगा वो स्प्रेड का होगा. बट बिफोर observing that particular illustration, let we have an empirical proof of central limit theorem. जो डेटा कलेक्ट किया है हमने मेहनत से, उस डेटा पे थोड़ा सा काम करना है और उसके बाद ये empirical proof आपकी समझ में आ जाएगा. तो सबसे पहले जो टास्क मैं आपको अभी दे रहा हूँ वो टास्क ये है कि obtain the population mean mu and the population standard deviation sigma from the given population data. Believe me, it is the same population data I have given you in my last lecture. ये वही पॉपुलेशन डेटा है जिससे आपने n इज इक्वल टू 5 का सैंपल निकाला है. अब काम मैंने आपको दिया है कि इससे आप मीन की वैल्यू म्यू और सिग्मा की वैल्यूज मालूम कर लें. तो आई एम गोइंग टू डू इट यूजिंग MS Excel अगेन. So here we are. The same population values, 11 values are given to us, and we are about to calculate the value of mean. In order to calculate mean using the MS Excel, we use the syntax average is equals to average, and yaqinan the range of this data is, which is from A2 to A12. By pressing enter, I can get the value of mean, which must be visible to you people. अगर ये विजिबल नहीं है तो मैं थोड़ा सा जूम को बढ़ा देता हूँ ताकि ये चीज़ आपकी नज़र में आ जाए. ये है mu is equals to 6.818. Write it, please write it somewhere on your writing material. Similarly, I am going to calculate the standard deviation of population. So standard deviation of the population can be found using the syntax stdev and also p. आप डॉट पी भी लगा सकते हैं, सिर्फ पी भी लगा सकते हैं. तो पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन आपको पता चल जाएगा. एंड आफ्टर गिविंग द रेंज अगेन फ्रॉम A2 to A12 I am about to calculate
the value of standard deviation of population, which is this 3.4329. If anyone want to see the formula of mean and variance, mean and standard deviation of population, so I can also show it to you. See, population mean mu is nothing but sum of all population values divided by n, and we got the result 6.818. Similarly, the population standard deviation, the formula we have used like this. ये सिंपल वे है फार्मूला को शो करने के लिए. सिग्मा सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम 1 टू कैपिटल एन, इंडिविजुअल वैल्यूज का डिविएशन लिया स्क्वायर डिविएशन मीन के साथ, और उसके बाद वी जस्ट डिवाइडेड विद कैपिटल एन, एंड आफ्टर टेकिंग द रूट वी गॉट द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन. सो हियर इज द स्टैंडर्ड डिविएशन. ओके, सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू राइट नाउ. तो इसके लिए मैं आपको इस स्लाइड पे दोबारा लेके आया हूँ, और यहाँ पर देख लें टास्क क्या है. सेकेंड टास्क ये है कि ऑब्टेन द मीन एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार. तो ये जो टर्म आई है नई है थोड़ी सी, ये है मीन्स, मीन ऑफ ऑल मीन्स. जो मीन्स का डेटा हमारे पास है उसका मीन निकालना है, और जो तमाम मीन्स का डेटा है उसका स्टैंडर्ड डिवीजन यानी सिग्मा एक्स बार. सारे मीन्स का स्टैंडर्ड डिवीजन और सारे मीन्स का मीन कैलकुलेट करना है. तो फॉर दिस पर्पस वी नीड द डेटा अगेन. तो हियर इज द मीन्स डेटा. तो ये सारे जो मीन्स हैं, यकीनन ये मीन्स की वैल्यूज हैं. तो हम इनका एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ मीन, यहाँ पर थोड़ी सी लिमिटेशन है, थोड़ा सा मेरे साथ कोऑपरेट कर लीजिएगा. एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार, तो मैंने एक्स बार लिखने की यहाँ पर कोशिश की, कॉपी करके पेस्ट करने की, बट आई वाज अनेबल टू डू दिस. तो वही है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार. तो इन तमाम मीन्स का मीन सेंटेक्स तो सेम रहेगा, इज इक्वल टू एवरेज, एवरेज ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस. बिल्कुल ठीक. यहाँ से इन ऑब्जर्वेशंस का सम हम करेंगे, कलेक्शन करेंगे इनकी रेंज. तो बेसिकली रेंज बन रही है B2 to B57 and it is about to display. Now please write down this value again somewhere on your writing material. Expected value of x bar comes out as 6.59. And what is sigma x bar? तो तमाम मीन्स का स्टैंडर्ड डिविएशन STDEV, चूंकि ये सैंपल डेटा है तो इसमें आप P के बजाय STDEV यूज कर सकते हैं. तो बाय गिविंग द रेंज of all values again from B2 to B57, I am about to display the standard deviation of all means. Now this is the value 1.539,404. Now we have calculated the population mean and population standard deviation, right? We have also calculated sample means of mean of means and standard deviation of means. तो how we are going to prove it? तो अब ये जो प्रूफ है अभी आपके पास है, क्योंकि सारी वैल्यूज आपके पास लिखी हुई हैं, ये m और n की वैल्यूज भी आपके पास हैं. तो रेस्ट ऑफ द वर्क यू कैन डू इट बेटर देन मी. So can you please verify this? Is this equal or approximately equal? Mu is equals to expected value of x bar. What was the value of mean? 6.818. That's very good. What was expected value of x bar? 6.59. These are quite closer. ठीक है, थोड़ा सा सैम्पलिंग एरर है, लेकिन ये दोनों वैल्यूज क्वाइट क्लोजर हैं. अभी आपके पास लिखी हुई भी है, अपने पास चेक कर लें आप. 6.8 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 6.6. 6.59 है, 6.6 बराबर है. इसके बाद ये कंपेयर करें. सिग्मा एक्स बार यानी स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ ऑल मीन्स विच इज कॉल्ड स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन, अगर हम सिग्मा ओवर रूट एन कर दें तो क्या आंसर बराबर आता है? व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ सिग्मा? 3.43. बिल्कुल ठीक है, और n is 5. So let we see whether the results are equal or not. So here we are. I am going to do it a bit directly. तो सिग्मा स्टैंडर्ड डिविएशन जो था पॉपुलेशन का वो था 3.43 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ SQRT ऑफ 5. बिल्कुल ठीक. तो सिग्मा ओवर रूट n, सिग्मा ओवर रूट 5 इज इक्वल्स टू, नाउ सी द सिमिलैरिटी. कितना अच्छे तरीके से ये थ्योरम जो है ये प्रूव हो गया है कि इनके दरमियान जो है वो काफ़ी हद तक सिमिलैरिटी मौजूद है.
और यहाँ अगर मैं चाहूँ तो मैं म्यू की वैल्यू लिख सकता हूँ विच वॉज इक्वल टू 6.818. तो both results seems to be approximately equal. So central limit theorem has been proved using this activity, and now I'm going to the slide again. Now here we are. सेंट्रल लिमिट थ्योरम एम्पेरिकली प्रूव हो चुका है. अब इसके बाद नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वर्सेस सेंट्रल लिमिट थ्योरम में मैंने आपको जो एक स्लाइड पहले बताई थी बात कि दो डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, दोनों का मीन सेम है लेकिन दोनों का स्प्रेड यानी डिस्पर्जन मेजर डिफरेंट है. तो सेंट्रल लिमिट थ्योरम में ये स्टैंडर्ड डेविएशन स्टैंडर्ड एरर बन जाता है तो थोड़ा सा लेसर हो जाता है. और अगर इन दोनों को इस इम्पैक्ट को देखा जाए इलस्ट्रेशन में तो इट कुड बी लाइक दिस. अब देखें बोथ डिस्ट्रीब्यूशंस आर द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और इन दोनों के मीन्स जो हैं वो सेम है, यहाँ पर लाई कर रहे हैं और डिफरेंस इनके स्प्रेड का है. तो विच डिस्ट्रीब्यूशन seems like a normal distribution? यकीनन रेड वन इज द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एंड ब्लू वन इज द सेंट्रल लिमिट थ्योरम. और इसके फौरन बाद हम लोग अब क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के, और कैसे ये पता चलेगा कि द डिस्ट्रीब्यूशन द क्वेश्चन रिलेटेड टू द सेंट्रल लिमिट थ्योरम. हाँ जी, नॉर्मल केस वर्सेस सेंट्रल लिमिट थ्योरम केस. तो पहले मैं आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की एक्सरसाइज का एक मॉडल दिखाता हूँ. और तो ऑब्जेक्ट कुड बी लाइक दिस. डेली प्रॉफिट ऑफ ग्रोसरी स्टोर ओनर follows a normal distribution with mean is equal to 6400 and the standard deviation is 1200. So how we got this data? How one got this data? मुझे पता है. यकीनन कोई ग्रोसरी स्टोर वाला है, वो अपना डेली प्रॉफिट है वो रीडिंग वो रजिस्टर में लिखता जाए और कुछ अरसे के बाद उसके बाद बहुत सारी रीडिंग्स आ जाएंगी प्रॉफिट की. तो उन रीडिंग्स का मीन निकाल ले, वो म्यू इज इक्वल टू 64, उनका स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल ले, सिग्मा इज इक्वल टू 12. बिल्कुल ठीक. अगर वो बिग सैंपल है तो म्यू और सिग्मा लिख सकते हैं. तो अब क्वेश्चन यहाँ पर ये आ रहा है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन. इफ एनी डे इज बीइंग सिलेक्टेड एट रैंडम, डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट हिज प्रॉफिट ऑन दैट डे will be less than 60-100 rupees. Now I am quite sure कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के केसेस वगैरह सॉल्व करके मेरी उन वीडियोस को देखकर यू आर एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. अब यहाँ पर जिन लोगों के पास नॉर्मल टेबल है यकीनन x को z में कन्वर्ट करके इसे सॉल्व कर लें. जो ऑनलाइन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कैलकुलेटर यूज कर रहे हैं वो कॉन्स्टेंट यानी पैरामीटर्स को एडजस्ट करें. म्यू को रखें 64, सिग्मा को रखें 12 और लेस देन 60 की प्रोबेबिलिटी निकाल लें. इट्स अप टू यू. तो मैंने यहाँ पर जो सॉल्व किया इस क्वेश्चन को तो बाय कन्वर्टिंग x इंटू जी किया. x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा मैंने बोथ साइड पे किया तो मेरे पास जो प्रोसीजर रिजल्ट आया वो ये आया. x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा 60 माइनस 64 अपॉन 12. तो दिस लेफ्ट हैंड साइड बिकम z एंड द राइट हैंड साइड बिकम माइनस 0.33. तो माइनस 0.33 पर जो मुझे प्रोबेबिलिटी की वैल्यू मिली वो है 37%. तो गोया व्हाट इज द इन्फेरेंस कि किसी भी पर्टिकुलर डे में उसका प्रॉफिट 6000 से कम होने के चांसेस 37% हैं. गोया ज्यादा चांसेस इस बात के हैं कि 6000 से ज्यादा होगा प्रॉफिट. बिल्कुल इसी तरह हम केस लिख सकते हैं पूरा. अब सेंट्रल लिमिट थ्योरम का केस कैसे बनेगा? तो नाउ सी द ऑब्जेक्ट. इफ यू रीड द ऑब्जेक्ट इट रिमेन्स द सेम. आप देखें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो ऑब्जेक्ट था वही ऑब्जेक्ट सेंट्रल लिमिट थ्योरम में भी फॉलो हो रहा है. कोई फर्क नहीं है. यकीनन ऑब्जेक्ट में फर्क नहीं होता, बट द थिंग विच इज डिफरेंट इज द क्वेश्चन. जो असल ऑब्जेक्टिव है वो ये है. अब इंस्टेड ऑफ अ सिंगल वर्किंग डे दे सेड इन 6 वर्किंग डेज determine the probability that his average profit will be less than 60-100 rupees. So if you just recall your memory, when you have solved so many problems related to probability and probability distribution and random variables like binomial distribution, Poisson distribution, geometric distribution, hypergeometric distribution और भी जितनी डिस्ट्रीब्यूशन आपने पढ़ी उसमें probability of x पूछी गई है, probability of x सॉल्व किया है. इन लेक्चर्स के शुरू में भी मैंने यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन से जहां आई टुक माय स्टार्ट तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ही की बात हुई है. ये पहला मौका है
कि जब प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बार के बारे में पूछा जा रहा है। तो याद रखें, सेंट्रल लिमिट थ्योरम इज ऑल अबाउट फाइंडिंग द प्रोबेबिलिटीज ऑफ एक्स बार द सैंपल मीन। तो नाउ इट इज एक्स बार लेस देन 60। अब ये बात तो तय हो गई कि एक्स बार की प्रोबेबिलिटी है। हाउ वी कैन आर गोइंग टू सॉल्व इट? यकीनन सेंट्रल लिमिट थ्योरम की स्टेटमेंट है कि वो नॉर्मल को फॉलो करती है एक्स बार की डिस्ट्रीब्यूशन। तो वी कैन ऑल्सो कन्वर्ट दिस एक्स बार इनटू जी, बट इन ऑर्डर टू कन्वर्ट दिस एक्स बार इनटू जी द फॉर्मूला विल बी अ बिट डिफरेंट। तो वो किस तरह से यूज होगा वो यहां पर मैंने शो कर दिया। इन ऑर्डर टू मेक दिस एक्स बार अ जी, we have to use the transformation x bar minus mu divided by sigma over root n. Less than is the same less than sign, and here on the right hand side we are going to we go empirically. 60 minus 64 divided by 12 over root n, और n is 6। तो ये याद रखें कि सेंट्रल लिमिट थ्योरम के क्वेश्चन में कहीं ना कहीं सैंपल साइज स्पेसिफाइड होगा और उसके बाद एवरेज की प्रोबेबिलिटी पूछी जाएगी। तो आई होप कि वीडियो को पॉज करके आप इसको सॉल्व कर लेंगे and you will definitely solve it. Yaqinan, the answer is 21%. अब now the previous question का जो आंसर था वो तो 37% था। Now probability seems reduced, right? क्यों reduce हो गई probability? तो इसको हम again उसी illustration से देखेंगे। First I am going to display both questions. सेंट्रल लिमिट थ्योरम का क्वेश्चन भी डिस्प्ले कर दिया, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का भी कर दिया, और उसी इलस्ट्रेशन पर अब मैं लेके चल रहा हूँ। सिंस देयर इज अ कॉमन वैल्यू ऑफ एवरेज म्यू, म्यू सेम है 64, तो वेयर वी शुड मार्क 60, राइट और लेफ्ट? यकीनन लेफ्ट पे मार्क करेंगे, हमने कर दिया लेफ्ट मार्क। और अगर आप यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करके नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे एरिया देखें तो दिस एरिया 37% सीम्स मोर as compared to the area covered by the central limit theorem वाली normal distribution. This area is 21%, this is 37%. So remember one thing कि in central limit theorem exercises edges के ऊपर probability central limit theorem में कम होती हैं, normal distribution में ज्यादा, edges पर, tails पर। और अगर area within middle लिया जाए within a range, तो central limit theorem में आंसर बड़ा आंसर आता है और normal distribution में आंसर छोटा आता है। इट इज जस्ट ड्यू टू द डिफरेंस इन द स्प्रेड। तो इसके बाद लास्ट पार्ट है, इसको सॉल्व कर लें। वही वाला क्वेश्चन है, इफ यू सिलेक्ट अ सैंपल ऑफ 6 वर्किंग डेज, डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट हिज एवरेज प्रॉफिट विल फॉल विद इन द रेंज ऑफ 60 to 70 100 रुपीज, एंड द क्वेश्चन इज दिस। अब ये पुराने रूल्स हैं, सारे पुराने थ्योरम्स हैं कि आप थ्योरम अप्लाई कर लें। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बार लेस देन 70 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बार लेस देन इक्वल टू 60, उन दोनों एक्स बार को जी में कन्वर्ट करें एंड पॉज द वीडियो एंड देन कैरिड आउट द आंसर। और ये मैं आपको बता दूं, यहाँ पर इसका सोल्यूशन की स्टेप नहीं है, तो यू हैव टू फाइंड द एरिया बाय योरसेल्फ एंड द रिजल्ट शुड बी 68%। तो आई होप कि सेंट्रल लिमिट थ्योरम इज क्वाइट क्लियर टू यू। तो अब अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स के क्वेश्चन आए नॉर्मल में तो वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के होंगे, और अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बार के क्वेश्चन पूछे जाए आपसे तो वो सेंट्रल लिमिट थ्योरम के होंगे। इंशाल्लाह ताला मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।